یہ ہے جی بلتیت فورٹ کی انٹرس، اور یہ دیکھیں یہاں سے ہے اس کی ساری انٹرس۔ ویلکم کرتے ہیں، میرا نام سلطان ہے، میں فورٹ گائیڈ ہوں۔ ہم آپ کے ٹور کنیکٹ ادھر سے سو حمزہ میں سر دو قلعے ہیں، القیت اینڈ بلقیت۔ ایک ہی راجہ کی فیملیز نے دو قلعوں کو بنایا تھا۔ جس قلعے میں آپ کھڑے ہیں یہ بلقیت فورٹ ہے، 800 سال پرانا قلعہ ہے۔ 1945 میں یہاں کا جو کنگ تھا ان کا نام میر محمد جمال خان تھا۔ انہوں نے اس قلعے کو 1945 میں چھوڑا تھا، سو 1945 سے لے کے 1990 تک قلعہ خالی رہا۔ اس کی حالت کافی خراب ہوئی تھی، دیواروں کی خستی حالت ہوئی تھی۔ سو 1990 سے 96 تک اس قلعے کو رینوویٹ کیا گیا ہے۔ ان 6 سالوں میں اس قلعے کی رینوویشن جو ہے AKCSP آغا خان کلچر سروس پاکستان نے کیا تھا۔ زمانے کے جو صدر تھے فاروق احمد خان لغاری، ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان، 12 ممالک کے ڈفرینٹ ایمبیسڈرز نے فورٹ کو میوزیم کے طور پہ اوپن کیا گیا تھے۔ یہ اناج کے ذخائر ہیں۔ اس قلعے میں اسی طرح کے تقریباً 7 ہیں۔ لوگوں سے مالیت وصول کی جاتی ہے، اناج گندم کی شکل میں۔ آپ کے سامنے جو ٹیبل پہ لگے ہیں سکیلز ہیں، یہ میجرمنٹس ہیں، لوگوں کو حساب سے دیا بھی جاتا تھا اور ان کو حساب سے لیا بھی جاتا تھا۔ آپ اس کو ایز اے پیمانے کہہ سکتے ہیں۔ سب مہمانوں سے ریکویسٹ ہے دروازے چھوٹے ہیں، سر کا خیال رکھنا پلیز۔ دروازے چھوٹے ہونے کا جو مقصد ہے یہاں پہ ٹمپریچر ہے، ابھی بھی اسپیشلی دسمبر جنوری میں جو ٹمپریچر ہے کبھی کبھار -15-20 تک چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ ان چھتوں اور دروازوں کو چھوٹا رکھا جاتا تھا۔ دوسرا جو مین جو ریزن ہے، خدا نہ خواستہ باہر سے کوئی حملہ کرے تو زیادہ تر لوگ اندر گھسے نہیں، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ان دروازوں کو چھوٹا رکھا جاتا تھا۔ سو ٹور سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ مہمانوں کو زندان دکھا دیتا ہوں۔ اس زمانے کا جیل تھا، حوالات تھی، لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہ ہے جی ان کی جیل۔ وہاں پر جن سے ہے لوگوں کو جیل کیا جاتا تھا، اور یہ ان کا رستہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، زندان خانہ ہے، زندان خانہ۔ اچھا تو وہاں سے تھا نہیں، اسپیشلی گارڈ تعینات کیے جاتے تھے۔ آپ کے سامنے گلگت بلتستان کے لوکل ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں۔ نو سر پلیز، یہ گلگت بلتستان کے لوکل ٹریڈیشنل ڈریس ہے۔ آپ کے سامنے فیمیل ڈریس ہیں، سائڈ میں جتنی بھی ہیں یہ یہاں کے میل ڈریس ہیں۔ آپ کے سامنے جو وائٹ ڈریس ہے ہم لوگ اس کو شوخا کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ابھی بھی ہم لوگ شادی بیاہ کے تقریبات میں اس کو پہنتے ہیں۔ اس کا سائز لمبا ہونے کا جو مقصد ہے، اس زمانے میں جب لوگ ٹریول کرتے تھے تو رضائی کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ چائنیز سلک ہے، ویلویٹ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں۔ ابھی بھی یہاں پہ میرج اوکیزن میں اس کو پہنایا جاتا ہے۔ آپ اس کو پارلیمنٹ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہو، آپ اس کو میٹنگ روم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں لیونگ روم کے طور پہ بھی اس روم کو استعمال کیا کرتے تھے۔ حمزہ کا دیسی گھر بھی ہے۔ اب مہمانوں نے یہ بھی کہنا کہ ہم نے حمزہ کا سارا گھر دیکھ لیا۔ یہ ٹریڈیشنل ہال ہے سر، آپ اس کو ٹی وی لانچ ہال بھی کہہ سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ ابھی بھی ہم 70% یا 80% کے لوگ نیچے فرش پہ بیٹھتے ہیں، فرش پہ سوتے ہیں۔ جو سٹیپس جو بنائے گئے ہیں یہ سونے کی جگہ ہے۔ غم خوشی کے موقع پر ابھی بھی ہم لوگ اسی طرح کا ایک گھر بناتے ہیں۔ اس گھر کا مین مقصد جو بنانے کا ہے، یہ گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے سر، یہ سردیوں میں گرم رہتا ہے۔ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک احسان ہے ہم پہ، لوگوں کا جینے کا آپ سہارا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ ابھی بھی اسی طرح کا ایک گھر بناتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشنل ہال ہے۔ آپ کے سامنے جو کارپیٹ ہے سر، یہ بخارا کارپیٹ ہے، ازبکستان میں بنی ہے۔
150 साल पुरानी कारपेट है। कश्मीरी डिजाइन की छोटी सी डोर है। ये उस जमाने का इमरजेंसी एग्जिट, बाहर निकलने का भी रास्ता था। खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला करे, यहाँ से निकलने का भी रास्ता था। सो आप मेहमानों को बताते चले, ये उस जमाने का ऐवान मजलिस शूरा के तौर पे भी, लिविंग रूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे। मेहमानों को बताते चले सर जी कि उस जमाने का शाही किचन था। आप इसको रॉयल किचन कह सकते हो। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था। कुछ जो पाउच जो केटल्स हैं ये चाइना से लाई गई हैं। बाकी जितने भी बर्तन हैं ये यहाँ के लोकल में है। आपके सामने तवा था, उस जमाने में रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स हैं। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं, नूडल टाइप के सूप के लिए, या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई की जाती थी। इनकी बैक साइड पे पंपकिन्स हैं। ये कद्दू के जग्स है। बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। So this one is a royal kitchen। आप मेहमानों को बताते चले, ये उस जमाने का शाही बोर्ज खाना था। मेहमानों को बताते चले, आप सतह समंदर से तकरीबन 8,700 फीट पे हैं, 2,500 मीटर्स पे है सर जी। उस जमाने का ये शाही तख्त था। अब इसको रॉयल थ्रोन कह सकते हो। यहाँ पे बादशाह बैठा करते थे। नीचे फ्लोर पे यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे। यहाँ पे फैसले किया करते थे। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। ये जो कार पार्किंग जो एरिया है, बिफोर 1974 सर ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे सर। आपके सामने राका पोशी है। ये दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है। 7,788 मीटर। दरमियान में सर जीरान पीक है, 7,300 मीटर पे। लेफ्ट पे बिहाइंड द ब्लैक माउंटेन ये गोल्डन पीक है। ये क्लाउड्स में नजर नहीं आ रही है सर। आपके सामने जो है सर जी उल्तर ग्लेशियर्स हैं। ये इसका बॉटम नजर आ रहा है। ये सामने जो है क्लाउड्स में उल्तर ग्लेशियर्स हैं सर। 800 साल पुराने यही ग्लेशियर्स इस दीवार के साथ कनेक्टेड थे। नीचे किचन में आपको फ्रिज के तौर पे जो दिखा रहा था, यही ग्लेशियर थे सर जो इस दीवार के साथ कनेक्टेड थे। गिलगित बल्तिस्तान में 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं। ये दरमियान में माखोर है, दोनों आइबेक्स है। अब मेहमानों को थोड़ा आगे जाएंगे तो आतिश फोर्ट भी नजर आ जाएगी। यहाँ से स्टार्ट है। मीर गजन खान 1 है, इनका स्केच है। ओरिजिनल शेप नहीं है, हाथ से बनाया गया इनका स्केच है। फिर उसके बाद इनका बेटा है मीर सफदर खान है। 1891 में जब हुंजा पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था तो ये सिंकियांग चाइना भाग के चले गए थे। सो राजगी का जो निज़ाम था इनको भाई को मिला था। मीर मोहम्मद नज़ीम खान को मिला था। हुंजा में सर 70% के जो वाटर चैनल्स हैं ये इनके पीरियड में बनाए गए हैं। फिर उनके साथ इनका बेटा है सर जी गजन खान 2 है। आखिरी हुक्मरान थे सर जिन्होंने 1945 में इस किले को छोड़ा था। मीर मोहम्मद जमाल खान थे सर, गिलगित बल्तिस्तान का ये मेजर जनरल का टाइटल भी इनको दिया गया था। उस जमाने के जो वजीर आजम साहब थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी स्टेट्स थे इनको ख़त्म किया था, डिमोलिश किया था। इस वजह से इनको ऑनरेबली मेजर जनरल का टाइटल मिला था। मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस है। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। हुंजा स्टेट का फ्लैग था सर। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे सर। ये रुश कहते हैं हम लोग, मार्को पोलो शिप है। इटालियन एक्सप्लोरर थे, चाइना से आते हुए ये खुंज रॉक टॉप की वैलीज पे देखा था। लोकल जबान में हम इसको रुश कहते हैं। तो 46 इमाम को उस जमाने के किंगडम ऑफ ईरान ने आगा का लक़ब दिया था। देन 47 इमाम है शाह अली शाह है, आगा खान 2 है, आगा खान 3 है, शाह सुल्तान मोहम्मद शाह है। अगर आपने सोशल स्टेजेस में पढ़ा हो तो पाकिस्तान में इनको सर आगा खान भी कहा जाता था। समर बेडरूम था, मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह था। आपके सामने जो कालीन है स्पेशली बादशाह के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी।
हंजा और चाइना के दरमियान तिजारती मुआहदे हैं। ये तिजारती मुआहदे जो हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो चाइनीज और फारसी में लिखी गई है। हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज था सर वो फारसी थी यहाँ पे बिफोर 1945 when we marched to पाकिस्तान। अभी जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। ऊपर जो डिजाइन है इस डिजाइन को कश्मीरी डिजाइन का सीलिंग कहा जाता है। 1915 से लेकर 1930 तक आपके सामने जो कलरफुल ग्लासेस हैं ये कश्मीरी डिजाइन के कलरफुल ग्लास है। स्पेशली उस जमाने में राजा फैमिलीज के साथ बैठ के बाहर यहाँ से एंजॉय कर सकते थे। आपके सामने 1950 की तस्वीर है, बल्तित किले से ली गई है। मीर मोहम्मद जमाल खान है करंट जो राजा है। मीर गजनफर अली खान की पिक्चर है, ये बल्तित फोर्ट से ली गई पिक्चर है। ये पहला टेलीफोन है सर उनजा में ब्रिटिश लेके आए थे सर जी। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। आपके सामने हम लोग गोरा कहते हैं, ये बेबी कॉट है 1 साल तक बच्चों के लिए। अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। कुरानी आयत भी लिखी जाती है किसी की नजरी से बचने के लिए। आपके सामने 2 कुरान पाक है, एक 300 साल पुरानी कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है, हाथ से लिखी गई है। वुडन प्लेट्स हैं, उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। सामने जो है सर जी चाइनीज कारपेट है, खोथियन कारपेट कहते हैं, सिंकियांग चाइना में बनी है। ये 200 साल पुरानी कारपेट है। चाइनीज करेंसी है, पेपर करेंसी है, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। ये 1930 से 31 तक की नोट्स है। आपके सामने कलरफुल ग्लासेस है, ये हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। आप आई होप यू हैव एंजॉयड द टूर प्लीज। ये हमारा रूम था। आप सब मेहमानों का शुक्रिया सर जी। ये एग्जिट यहाँ से लेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। ये था जी बल्तीत फोर्ट जो कि मैंने आपको सारा विजिट करवाया, बल्कि मैंने स्पेशली टूर गाइड वगैरह भी करवाया था आप लोगों के लिए, ताकि हमें इसकी कंप्लीट डिटेल समझ आ सके कि बल्तीत फोर्ट की हिस्ट्री क्या है। बल्तीत फोर्ट में हम गए थे, वहाँ पर हमें इतनी समझ नहीं आई, बट यहाँ पे बाद में हम बल्तीत फोर्ट आए तो यहाँ पर हमने ने गाइड वगैरह करवाया ताकि हम आसानी हो सके हमें। तो ये देखिए यहाँ पर ये तोप भी है, इसका सारा व्यू पॉइंट